کا شکنجا، آکٹوپس کا شکنجا۔ ہراوڑی ڈیم پھاند کر سمندری آکٹوپس کے قافلے آبادی کی طرف روانہ ہو چکے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی گاؤں والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ خطرناک 8 پیر والا جانور اگر کسی آدمی یا جنگلی جانور کو پکڑ لے تو اس کے رگوں سے خون چوس کر اسے ایک دم مردہ کر دے اور اپنی پکڑ اس وقت تک ڈھیلا نہ کرتا جب تک کہ وہ اسے گنے کے رس کی طرح چوس کر نہیں پھینک۔ لوگ کہتے ہیں یہ جانور اپنی کسی جادوئی طاقت سے اچھال مار کر ناگ ندی میں آن گیا۔ جادوئی طاقت سے اچھال مار کر ناگ ندی میں آن گیا۔ ناگ ندی بڑی گہری ہے، اتنی گہری کہ اس میں ڈوبنے والے خوش قسمت اگر بچ کر کنارے لگ جاتے تو بتاتے کہ ندی کا پاتال اپنے اندر ایک زندہ شہر بسایا ہوا۔ بڑی بڑی عمارتیں ہیں، قلعے ہیں، ان میں آدمزاد نہیں رہتے بلکہ آکٹوپس رہتے۔ 8 پیر والے جانور، پیروں کے اوپر گول ہانڈی جیسے پیٹ کے نیچے 2 گول گول شیطانی آنکھیں گردش کرتی ہیں۔ گدھ کی نظر رکھنے والے پانی کے اندر ہی اندر 80 کوس بنارس تاک لینے والے اپنے شکار کو دور سے ہی تیک لیتے ہیں۔ بڑی بڑی مچھلیوں کے علاوہ ڈالفن، مگرمچھ، گھڑیال جو بھی اس کی گھات میں آ جاتے ان کو اپنی گرفت میں لے لیتے۔ جکڑن ایسی ہوتی کہ شکار جتنا بھی اینٹتا رہے وہ اس کا نوالا بن جاتا۔ البتہ شکار کا 1-2 قطرہ خون دریا کو ہی مل جاتا، یعنی ملکیت کا 1/1000واں حصہ۔ شاید دریا کو گمان تھا کہ قطرے قطرے ہی سے دریا بنتا ہے۔ یہ قلعے، یہ عمارتیں، چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں، یہ سیپ، یہ موتی، سب کے سب دریا کی پناہ میں تھے۔ پھر ایسا کیا تھا کہ یہ مسمار نہیں ہوتے؟ جانے کب سے استادہ ہیں، سالوں سے، صدیوں سے۔ کیا صرف نام کی ہے ناگ یہ ندی؟ پھپکار کیوں نہیں مارتی؟ ڈنک کیوں نہیں مارتی؟ شاید پھپکار کیوں نہیں، ڈنک کیوں نہیں مارتی؟ شاید معصوم ناگ ہے، ڈسنا سکھا ہی نہیں۔ اور اس میں آنے والے سیلاب اوپر اوپر گزر جاتے، پاتال میں تہلکا نہیں مچاتے۔ غدر 1857 سے خائف ہے۔ اسے غدر سے کیا سمجھنا، بغاوت کیوں نہیں؟ اس بات کو تاریخ باپ کہتا، تمہاری مجبوری ہے دریا، تو پھر قلعوں کے دروازوں سے سر ٹکراتے رہو، سر پھوڑتے رہو۔ اور پھر دریا نے طوفان سے پہلے کی خاموشی اختیار کی۔ پھر کئی صفات الٹ گئے، تہیں پلٹ گئیں، طوفانی ہوائیں بھور بناتی ہوئی ندی کے اندر داخل ہوتی گئی۔ پھر پاتال تک گہرے اترنا لازم تھا۔ ہوائیں بونکتی ہوئی پاتال تک جا پہنچی۔ قلعے اور عمارتوں کے دروازے، کھڑکیاں سب بند ہوئیں، مگر ہوا تو ہوا ہے، اندر گھستی ہے، کبھی سوئی کی مانند تو کبھی بھالے کی طرح۔
फिर क्या था, पानी के लश्करों को जो करना था वो करके रहे। तो ऑक्टोपस के काफिले नाग नदी की सतह पर आ गए और दूसरी आबादी की तलाश में गंगा पार करते हुए गंडक में दाखिल। कहीं ठहर न सके, कोई पाताल न मिल सका। उन्हें कई मार्के करने पड़े। एक का पेट फट गया, दूसरे की टांग कट गई, मगर ठीक वैसे ही लंगड़े लूढ़े बेआंत काफिले के साथ घिसकते रहे। एक उम्र दराज ऑक्टोपस सतह पर चलते चलते लड़खड़ाने लगा। किसी ने सहारा दिया। बूढ़ा बोला, और कितना बहना होगा। दूसरे ने जवाब दिया, जहां तक पानी बहा ले जाए। किसी पाताल का सुराग लगाओ ताकि हम वहां जाकर आराम करें। आपने देखा नहीं हमारे साथ क्या हुआ? जो होना था सो हुआ। अभी आसरा ढूंढना है। हम हमारी ताकत पहचानते हैं। जब आबादी के लोग खबर सुनकर खौफजदा थे तो उनमें से कई निकलकर आसपास के गांव वालों को खबर दी कि वहाँ पीपल के पेड़ के पास जहाँ से नहर मुड़ती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा है। कोई अजीब गरीब पैरों वाले जानवर का काफिला हमारी तरफ आ रहा है। उसकी गिरफ्त के बड़े चलते हैं। अरे भाई, डरना क्या, हम भी तो आदमी हैं, हम सब डटे रहें। लोगों ने देखा वो काफिला पानी के रेले में मुड़ती नहर के साथ दक्षिण गांव के वसी वाली पोखर में उतर गया। इसकी गहराई भी कम न थी। सारे ऑक्टोपस ने जमीन पकड़ ली। खबर सुनकर दक्षिण गांव के मछुआरे पोखर के किनारे कतार दर कतार जमा होने लगे। मगर वो काफिला बहुत अंदर धंस कर बैठ गया था जमीन में। उन्होंने बांस की बल्लियां पानी में डाल डाल कर घुमाई, मगर सब राय। सारे के सारे बैठ गए। कहा, इंतजार करेंगे, देखें कब तक छुपा रहेगा। एक मुद्दत हो गई, बाहर नहीं आया। हाँ, ये तो है। अच्छा सुनो, फिर एक सरगोशी, कहीं पोखर में कोई सुरंग तो नहीं? कहीं पोखर में कोई सुरंग तो नहीं? वो लोग ये सोच ही रहे थे कि उन्हें महसूस हुआ इनकी गर्दनों पर किसी अनजान शय का शिकंजा कस रहा है। मगर देखना है आगे क्या होता है। आगे खुला आसमान, बहुत कुछ और वजह से कहीं नहीं पहुंच पा रही है और शायद मुनक़ता कर दिया गया उसका भी सिलसिला। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे और कल भी ये मशवरा आया था कि रूह अदब एकेडमी की जो रिसाला है, उसी के तरह हम लोग बच्चों के लिए भी एक रिसाला निकाले और ये क्षमा और खिलौना की कमी को हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इसकी कमी को पूरी करें। तो कोशिश जरूर रहेगी और आप सब हजरात से ताउन की अपील है। और हमारे हैदर साहब भी यहाँ हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर पीछे डॉक्टर दरक्षा जरीन, जिनकी डॉक्टर नाम सही लिया, डॉक्टर नौशाद आलम साहब, हमारे नसीम अजीजी साहब, हमारे मंसूर हसन साहब, और सामने मैं देख रहा हूँ कि 3 मेंबर जो लेट से आए उनको कुछ सजा भी मिली, सामने ही बैठे हुए हैं, मुख्तार अली साहब, इश्तियाक अहमद साहब और परवेज रजा साहब। असल में एक और तकरीब में गए थे, वहाँ भी फर्ज निभाए और एकेडमी के प्रोग्राम से लुत्फ उठाने के लिए वो सामने आ गए। खैर, और जितने भी लोग हैं, हम लोग एकेडमी की टीम पूरी आपके सामने, ये कोशिश है कि उर्दू जबान की खिदमत जहाँ जहाँ मुमकिन हो हम लोग हर जगह
वो काम करेंगे जहाँ जहाँ उर्दू को फैलाया जा सके, इसको फरोग मिल सके। और हम लोग ये भी कोशिश कर देंगे कि जैसे हम लोग कसम खाए कि नई नस्लों में उर्दू को कैसे उसको बढ़ावा किया जाए, नए हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे बच्चियां आ रही हैं, तो उनको उर्दू रस्मुल खत और ज़बान कैसे सिखाया जाए। कम से कम अगर स्कूल में नहीं सिखा सकते तो घर के अंदर सिखा सकते हैं। और मैडम ने कल हम लोगों ने एक और फैसला किया कि जो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कम से कम छुट्टियों के दौरान हम लोग एकेडमी में उर्दू कैंप लगाएंगे, ताकि वो लोग आकर करके उर्दू जबान से अपने आप को रोशना, बच्चे आकर के यहाँ पर अगर कैंप में ही हिस्सा ले ले, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का अगर कैंप हो या 1 हफ्ते का हो, और कम से कम जबान से वाकिफ हो सके, तो हम लोग की कोशिश रहेगी। और शुरू में तो ये पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से हम लोग इसको शुरू करेंगे, लेकिन बाद में अगर इसमें कामयाबी और मिली तो इसको मुख्तलिफ इलाके में भी हम लोग ले जा सकते हैं। लिहाजा ज्यादा और आपकी समाखराशी नहीं करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और फिर से ये कसम खाता हूँ, और आप लोग सब हमारे इस हल्फ में जी आप लोग शामिल थे और हैं और रहेंगे कि अपनी नई नस्ल को हम लोग को उर्दू से रूशनास करना है, उनको सिखाना है, और उर्दू की तहजीब के साथ साथ ज़बान भी, वो भी अपने नई नस्लों को, जो आने वाली नस्लें उनकी होंगी, वो भी ये ज़बान को फैला सके। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ मैं अपनी बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नजीमुल हक साहब कि आपने ऐलान भी किया और अपनी गुफ्तगू भी रखी। यकीनन जो हौसला अफजा गुफ्तगू थी, जिसका इज़हार हमारे सामईन अपनी तालियों से भी कर रहे थे, और यकीन जानिए कि उर्दू अकादमी बार बार इस बात का ऐलान करती है कि आपके जो मशवरे होंगे, अगर वो मशवरे लायक कबूल हैं, अकादमी कबूल करेगी, उस पर अमल पैदा भी होगी। इसका इज़हार नदीमुल हक साहब ने किया। हमें इज़हार तशक्कुर के लिए साबिक कारगुज़ार वाइस चेयरमैन और उर्दू अकादमी के सीनियर मेंबर जनाब सैयद मोहम्मद शामी हदी साहब को ज़िम्मा दे रहा हूँ कि आप इज़हार तशक्कुर करें। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ़ फरमा आज इस महफिल के सदर जनाब नदीमुल हक साहब, मौजूद मेहमानान, खातून हज़रात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्रामों का सीरीज़ है। एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ, दूसरा ख़त्म हुआ चाहता है। पहला प्रोग्राम हम लोगों ने उर्दू की हिफाजत के लिए कसम खाई है। आपको बताता चलूँ तो उर्दू के सिलसिला कई साल पहले शुरू कर चुकी है। हम लोगों का यहाँ किताबी मेहनत तक 10 वर्ष का होता है। हम लोग स्कूल से बच्चों को बुलाते हैं, जिनके तहत तादाद तकरीबन 300-350 हुआ करती है, और हम लोग हर बच्चे के हाथ में 200 रुपये का कॉपी देते हैं। कॉपी से देते हैं कि वो इस तरह से किताबें खरीदें ताकि वो खुद भी पढ़ें और घर वाले भी पढ़ें। फिर उसमें से 10 आदमी का इंतखाब होता है, 10 बच्चे का इंतखाब होता है। उससे मजीद हमें 1000 रुपये कॉपन देते हैं, और वो भी उस कॉपन से किताबें खरीदते हैं, अपने घर ले जाते हैं। ये सिलसिला 10 दिन तक चलता रहता है। कहने हमारा ये है कि हम जब बच्चों को कपन देंगे, किताब खरीदेंगे, किताब बच्चे घर ले जाएंगे, तो घर में न चाहते हुए भी घर के लोग किताब पढ़ेंगे। और हम जो मकसद चाहते हैं कि घर को, उर्दू को घर घर पहुँचाएँ, उसमें कामयाबी होगी। और आज ये जो पहला प्रोग्राम था उर्दू कसम खाएंगे, नदीमुल हक साहब के जहन के ऊपर है, और उन्होंने ये मशवरा दिया कि अंजुम उर्दू तरक्की हिंद चुके वो भी उर्दू में काम कर रही है, तो हम उस तरह ताकि वसी पैमाने पर हो सके। और उनके मशवरे पर हम लोगों ने अमल किया। प्रोग्राम हम लोग रखा, बहुत कामयाबी के साथ प्रोग्राम का नाम हुआ। दूसरा ये बताते चलूँ कि इरशाद के काम हम बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गुज़श्ता 3 साल में 17 निफ्स से 20 निफ्स तक 88 किताबें इरशाद उर्दू के में कर चुकी है, और मज़ीद किताबें
छपने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ हम दूसरी जुबानों किताबों को उर्दू में तर्जुमा कर रहे हैं, बांग्ला से उर्दू में, उर्दू से बांग्ला कर रहे हैं और उसमें तेजी लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के बाद महफिल अफसाना का प्रोग्राम है, इसके बाद 2 जगह हमारा मुशायरे का प्रोग्राम है। एक राजा बाजार में शाम के वक्त, दूसरा रिसवा में शाम को 4 बजे। काम का इतना प्रेशर है कि हम लोग ग्रुप में बट जा रहे हैं और ग्रुप में बैठकर काम कर, नदीम साहब अपनी जमात के साथ रिसवा जाएंगे और मैं राजा बाजार में रहूँगा। क्योंकि वक्त कम है, मसूलियत ज़्यादा है, इसलिए मजीद कुछ बातें ज़्यादा ना कर तस्वीर करना चाहूँगा कि उर्दू अकेडमी ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस मेहनत के साथ काम कर रही है और करना चाहती है। बस आपके ताउन की ज़रूरत है, मुफ्त मशवरे की ज़रूरत है। हमने हमेशा कहा है कि अगर कोई मुफ्त मशवरा उर्दू की तरक्की के लिए, इसको बढ़ाने के लिए अगर आप देंगे, हम उस पर यकीनन न सिर्फ गौर करें बल्कि अमल भी करने की कोशिश करेंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कामयाबी उर्दू अकेडमी की कामयाबी, आपकी आमद ही उर्दू की कामयाबी की ज़मानत है। आपसे काम मिलता रहे यकीन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।